أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین اور ملک شام کی طرف جہاد کرنے کے لیے حکم دیا تھا. لوگوں نے انکار کر دیا. فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون کہا کہ تو جاؤ اور تیرا رب جائے اور جہاد کرے ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کے انکار کے نتیجے کے اندر ان کو وادی تیہ کے اندر میں بھٹکایا. 40 سال تک بھٹکتے رہے. صبح سے شام تک چلتے اور سو جاتے اور دوسرے دن صبح میں اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے وہ نکلے تھے. اور قسم قسم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوچار کیا. اس کے باوجود اس زمانے کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ کی نافرمانی کی, جہاد میں جانے سے انکار کر دیا. اس کے بعد بھی وہ جو اللہ سے مانگتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے, یہود اور نصارہ, ان کے سامنے قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہارے باپ داداؤں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعام فرمایا, کیا کیا احسان فرمایا. اس کے باوجود تمہارے باپ داداؤں نے انکار کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ داداؤں کی طرح تم بھی انکار کرو, نبی آخر الزمان کا تم انکار کرو, قرآن پاک کا تم انکار کرو. یہ منشا اور مقصد تھا مدینہ منورہ کے
यहूद और नसारा को समझाने का कि अगर वो ईमान लाएंगे तो मदीना मुनव्वरा के मुशरिकीन और कुफ़ार और मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन और कुफ़ार वो भी ईमान लाएंगे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी, और याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने अपनी ज़ातों के ऊपर में जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला, बछड़े को माबूद बनाने की वजह से, फतूबू इला बारिइकुम, लिहाजा तुम तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, पैदा करने वाले के सामने, फक्तुलू अनफुसकुम, और तौबा के नतीजे के अंदर में अपने आप को मार डालो, अपने आप को कत्ल कर डालो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे परवरदिगार के पास, फताब अलैकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर में मुतवज्जह हुआ, तौबा कबूल की, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए गए, अल्लाह ताला ने बुलाया। 40 दिन के बाद में जब वापस आए तो देखा कि यहाँ पर सामरी जिसका नाम मूसा था, उसने औरतों के ज़ेवरात को जमा करके बछड़े की शक्ल बनाकर उसके अंदर में वो मिट्टी डाल दी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे से उसने उठाई थी, जिसकी वजह से बछड़े के अंदर में ये बछड़ा बोलने लगा, उसके अंदर में आवाज़ आई जैसा कि बछड़ा बोलता है। तो उसने इसी की इबादत करने की तरफ दावत दी। कुछ लोगों ने इबादत की, कुछ लोगों ने इनकार किया और कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर से वापस आने के बाद ये हुक्म दिया कि जिन लोगों ने समझाया दावत और तबलीग के काम के ज़रिया से वो अलग हो जाए, और जो खामोश रहे वो कत्ल करें उन लोगों को जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की। तो आमने सामने जो है अपने रिश्तेदारों को उन्होंने कत्ल किया। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में ज़िक्र फरमाया। और वादी तीह के अंदर में तकरीबन 40 साल तक भटकते रहे, और वहाँ पर इस हालत के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खाने पीने की नेमतों से नवाजा। मन और सलवा, मन मिठाई को कहते हैं, मीठी चीज़ को कहते हैं। रात के वक्त के अंदर में आसमान पर से या बादल में से एक बारिश की तरह बारिश बरसती थी, और दरख्तों के पत्तों के ऊपर में वो पानी जम जाता था। उलमाए किराम में लिखा है कि ये गौन की शक्ल का होता था, चिकना और बहुत मीठा होता था। इसको मन कहा जाता है, मिठाई। और सलवा बटेर को कहते हैं, तीतर बटेर जैसा छोटा सा परिंदा होता था। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको दो नेमतें दी गई थी, मिठाई खाना और बटेर वगैरह को भून करके खाना। लेकिन एक ही गीज़ा खा खा करके ये उगता गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरख्वास्त की कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, ये एक ही किस्म का खाना जो है हम थक गए। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे किया। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर से तौरात की तख्तियाँ लेकर के आए और तौरात की बातें उनको बताई, जैसा कि बछड़े को पूजना ये वगैरह किस्सा हो गया। उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ, लोगों को समझाया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने तौरात के अंदर में हुक्म दिया है, ये अमल करने की चीज़ है, वो बचने की चीज़ है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वगैरह बातें बताई। तो बनी इसराइल ने ये कहा कि 40 दिन तक तुम गायब रहे, तूर के ऊपर में तुम चले गए, नहीं मालूम तूर पर जाकर तुमने ये खुद अपने हाथों से ये लिखा हो और यहाँ नीचे उतर करके ये कहते हो कि ये तो तौरात है अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी। हमको क्या मालूम कि ये तौरात
अल्लाह की लिखी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की, तो एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने के बनी इसराइल के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, आवाज़ सुनाई दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तौरात मैंने मूसा अलैहिस्सलाम पर मैंने उतारी है, इसके ऊपर में तुम अमल करो। इसके बाद भी बनी इसराइल ईमान लाने के बजाय ये दरख्वास्त की कि जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला को खुल्लम खुल्ला न देख ले, हमारी नज़रों से न देख ले, अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म देता हुआ, तब तक हम इस तौरात के ऊपर में ईमान लाने वाले नहीं हैं और तुम्हारी बातों को सच्चा मानने वाले नहीं हैं। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर में फरमाया। वह कुल तुम, और याद करो जबकि तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नुअमिन लका, हम तुम पर हरगिज़ हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, या हम तुम्हारी बात पर हरगिज़ हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, या हम तुमको हरगिज़ नहीं मानेंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला को देख लें खुल्लम खुल्ला। जहरतन अलानिया तौर पर, खुल्लम खुल्ला अल्लाह तबारक व तआला को देखने का मुतालबा किया बनी इसराइल ने। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, फिर उनको कड़कने और बिजली ने पकड़ लिया, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि अल्लाह तबारक व तआला को खुल्लम खुल्ला जब तक न देखें, वहाँ तक हम तुम पर और तौरात पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, हर कसूर नाकस के सामने या तमाम लोगों के सामने ये बात मैं बता नहीं सकता, मैं कुछ लोगों को तूर पहाड़ के ऊपर में ले जाता हूँ और वहाँ जाकर के ये जो तुम्हारा मुतालबा है, इस मुतालबे को मैं पूरा करवाऊँगा, अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करके। बनी इसराइल के अंदर में जो बड़े बड़े ख़ानदान थे, उन बड़े ख़ानदानों में से एक एक आदमी को मुतय्यन किया गया कि एक ख़ानदान में से एक आदमी आवे और वो आदमी अपने ख़ानदान वालों को बात बतावे, तो फिर ख़ानदान वालों को उसकी बात मानना लाजिम और ज़रूरी। 70 ख़ानदान बड़े थे, 70 ख़ानदान बड़े थे। 70 आदमियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ में फिर लिया और तूर पहाड़ के ऊपर में ले गए। तूर पहाड़ पर ले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आवाज़ आई, और उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जिहत के अंदर में मौजूद है। अल्लाह ताला ऊपर है, नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, 6 जिहत के अंदर में अल्लाह ताला मौजूद है। हमारी जो आवाज़ निकलती है ये एक जिहत से निकलती है। अगर मैं यहाँ मगरिब की जानिब में बैठूँ और मैं बोलूँ तो मेरी आवाज़ यहाँ से आएगी, आप अगर बोलेंगे तो आपकी तरफ से आवाज़ आएगी, ये लोग बोलेंगे तो इधर से आवाज़ आएगी, ये लोग बोलेंगे तो इधर से आवाज़ आएगी, नीचे से कोई बोलेगा तो नीचे से आवाज़ आएगी, ऊपर से कोई बोलेगा तो ऊपर से आवाज़ आएगी। ये हमारा आवाज़ का निकलना और ये हमारी सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला सारी जिहतों के अंदर में मौजूद है। तो कोहे तूर के ऊपर में आवाज़ आई और 6 जिहतों से आवाज़ आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से आवाज़ आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा था कि मैंने मूसा के ऊपर में तौरात नाजिल की और मैंने तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी और तौरात के अहकाम के ऊपर में अमल करो। तो ये आवाज़ आ रही थी। इस आवाज़ को सुनने के बाद भी बनी इसराइल जो ज़िद्दी कौम थी, उन्होंने कहा कि हमको क्या मालूम कि तुमने इधर उधर, नीचे ऊपर, दाएं बाएं आदमियों को बिठा करके रखा हो और वही बोलते हो, और तुम कहते हो ये तो अल्लाह की आवाज़ है और अल्लाह बोलता है। जब ये कहा तो फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, इस बात के कहने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जिन 70 आदमियों को लेकर के गए थे, कड़क और बिजली आई और 70 के 70 वहीं पर मर गए। वअंतुम तंज़ुरून, और बनी इसराइल को कहा गया कि तुम देख रहे थे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम
اور زیادہ غمگین ہو گئے کہ سمجھانے کے لیے 70 آدمیوں کو طے کیا تھا، بڑے بڑے قبیلے کے 70 آدمیوں کو یہاں لے کر کے آئے تھے، اور یہ 70 آدمی یہاں پر مر گئے۔ اب میں نیچے اتر کر کے ان قبیلے والوں کو میں کیا جواب دوں گا کہ وہ تم لے گئے تھے اللہ کی بات کو سنانے کے لیے، اللہ کو دکھلانے کے لیے، تو ہمارے بڑے کہاں گئے، ہمارے سردار کہاں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے کے اندر میں 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ کوہ طور کے اوپر میں مار دینے کے بعد ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں ذکر فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم کی تفسیر ایک تو یہ ذکر کی، جو اس کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ پھر تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، اور ایک قول تفسیر کے اندر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا تو آسمان پر سے بجلی اور کڑک آئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ مر نہیں گئے بلکہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو جب ہوش آیا، یہ بات کی بات ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 احیاء موتا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ احیاء موتا کا معنی ہے مرنے کے بعد زندہ کرنا۔ چار چیزیں ذکر فرمائی ہے جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو وہ بنی اسرائیل کی جو گائے کا قصہ بھی آگے آ رہا ہے، وہاں پر ایک آدمی کا قتل ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی گائے کا ایک ٹکڑا مارو گوشت کا اس میت کے اوپر میں، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ آخر کے اندر میں جب انہوں نے گوشت کا ٹکڑا میت کے اوپر میں مارا تو مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے اس نے بتایا کہ مجھے فلانے آدمی نے قتل کیا، اور قتل کرنے کی وجہ بتائی کہ یہ وجہ تھی، اس کے بعد میں پھر مر گیا۔ تو ایک تو وہ تذکرہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ تذکرہ ہوا کہ 70 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے کے اندر میں ان کو زندہ کیا۔ یہ 2 قصے ہیں۔ اور تیسرا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ بقرہ ہی کے اندر میں آگے آتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہ بستی ہلاک اور برباد ہو گئی تھی، پورے مکانات چھتوں کے بل پڑے ہوئے تھے، اور پوری بستی والے مر چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا، مر جانے کے بعد سارے مر گئے۔ یہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو مار ڈالا، حضرت عزیر علیہ السلام کو مار دیا۔ گدھے کے اوپر میں سوار ہو کر کے جا رہے تھے، کھانا غلہ اناج وغیرہ لے کر کے مار دیا، 100 سال تک مار دیا۔ 100 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ سب سے پہلے سر بنایا، چہرہ بنایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام اپنے آنکھوں کے ذریعہ سے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے بدن کی ہڈیوں کے اوپر میں جو گوشت لگ رہا ہے، اور اس طریقے سے جو گدھا مرا ہوا تھا گدھا بھی زندہ ہو گیا، اور جو کھانا پینا وغیرہ تھا 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ تو تیسرے نمبر پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تذکرہ اسی سورہ بقرہ کے اندر میں حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کے اندر میں ذکر فرمایا۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ کیف رب ارینی، مجھے بتاؤ اے میرے پروردگار،
कैफ तुहील मौता, कि तुम मुर्दे को ज़िंदा कैसा करेगा, कैफियत मालूम करना चाहा। क़ाल अवलम तुअमिन, अल्लाह ताला ने पूछा कि मैं मरने के बाद मुर्दे को ज़िंदा करने पर मैं कुदरत रखता हूँ, तुम्हें ईमान नहीं है। क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर मुझे ईमान है, यकीन है, तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा, लेकिन मैं अपनी नज़रों से देखना चाहता हूँ। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान नसीब हो जाए। आदमी को इल्म हासिल होता है देखने के ज़रिया से, आदमी देखता है उससे भी इल्म हासिल होता है, उसको इल्मुल यकीन कहते हैं, यकीन पैदा होता है देखने के ज़रिया से। और आदमी को जानने के ज़रिया से यकीन पैदा होता है, और देखने के ज़रिया से यकीन पैदा होता है, और बरतने से और मामला अंजाम देने से भी यकीन पैदा होता है, जिसको हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। कि आपने पानी का नाम सुना, फिर पानी का इल्म हुआ, नदी या दरिया के किनारे के ऊपर में आप गए और आपने पानी को देखा, या तालाब के किनारे पर आपने पानी को देखा, और तालाब के अंदर आप नहाने के लिए अंदर उतरे या पानी को पिया, तो ये दर्जा बदर्जा जो है ये यकीन कहलाता है। इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था हक़्क़ुल यकीन का। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदे पालने के लिए कहा गया कि 4 परिंदे पालो। 4 परिंदे पाले, हिल गए, ऐसे हिल गए कि इन परिंदों को बुलावे तो दौड़ते दौड़ते आवे। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन 4 परिंदों को ज़बह करो, कत्ल कर डालो, और 4 परिंदों के गोश्त को, पर को, नाखूनों को, पाँव को और सर को और पैरों को जो मिला डालो, और मिला करके फिर 4 टुकड़े करो अलग अलग, और 4 पहाड़ों के ऊपर में अलग अलग रख दो, और फिर उनको बुलाओ तो यातीनका साया, दौड़ते हुए उड़ते हुए तुम्हारे पास में आएंगे। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जिक्र फरमाया है इसी सूरह बकरा के अंदर में। तो 4 जगहों के अंदर में अल्लाह ताला ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का तज़किरा फरमाया। इनमें से ये पहली चीज़ है, सुम्मा बअथनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुमको ज़िंदा किया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। इसके बाद में वादी तीह के अंदर में भटकते रहे, 40 साल तक भटकते रहे। उनके पास में जो खेमे थे वो खेमों के कपड़े भी फट गए, और साया करने के लिए उनके पास में कुछ नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर में बादल का साया फरमाया। इसका तज़किरा अल्लाह ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने तुम्हारे ऊपर में बादल का साया किया। जहाँ कहीं भी जाते तो उनके सरों के ऊपर में बादल चलता और सूरज की गर्मी से बचते। व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और खाने के लिए हमने तुम्हारे ऊपर में मन और सलवा नाजिल किया, उतारा। मन एक किस्म की मिठाई और सलवा एक किस्म का बटेर और तेतर। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बादल का साया किया, मिठाई और बटेर उतारे। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ जो हमने तुमको पाकीज़ा रोज़ी दे रखी है उसमें से खाओ। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। कैसे जुल्म किया? इस तौर पर जुल्म किया कि मिठाई और बटेर, यानी यूँ कहो कि ज़र्दा और बिरयानी, मन्नो सलवा, ज़र्दा और बिरयानी खाते 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 थक गए। तो कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि ये एक किस्म के खाने से हम तो उकता गए, हमको तो वो खाना चाहिए जो ज़मीन से उगता है, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, ककड़ी है और दाल है वगैरह, ये हमको खाने के लिए चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। तो अगरचे ये सज़ा के अंदर में थे और वादी तीह के अंदर में भटक रहे थे और तीह से निकल नहीं सकते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको थोड़े अरसे के लिए एक शहर के अंदर में जाने की इजाज़त दी। जैसे कोई आदमी जेल के अंदर में होता है, जन्म टिप के अंदर में 10 साल 20 साल,
लेकिन कभी शादी के मौके पर या किसी का मौका होता है मौत वफात वगैरह का, तो उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, पैरल पर छोड़ते हैं कि जाओ घर वालों से मिल करके आओ। इस तरीके से बनी इसराइल ने जब अल्लाह तबारक व तआला से ये खाना मांगा, दाल और मसूर ये वगैरह, तो कहा कि ठीक है ज़रा ये पड़ोस का जो गांव है इसके अंदर में जाओ। मुफस्सिर ने लिखा है कि इस गांव का नाम अरेहा था। अरेहा आज भी फ़लस्तीन के अंदर ये गांव मौजूद है, अरेहा गांव था। तो इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में फरमाया, वह कुलना, और याद करो जबकि हमने कहा उदखुलू हादिहिल क़रियत, इस गांव के अंदर में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिन्हा, और उस गांव में से खाओ, हैथु शिअ्तुम, जहाँ से भी तुम चाहो, रगदन, फरागत के साथ, आराम के साथ, आज़ादी के साथ खाओ, वदखुलुल बाब सुज्जदा, और गांव के दरवाजे के पास में जब दाखिल हो तो झुकते हुए दाखिल होना। इनको हुक्म दिया गया था कि झुकते हुए दाखिल होना। वक़ूलू हित्ततुन, और जब गांव के अंदर में दाखिल हो तो हित्ता बोल करके दाखिल होना। हित्ततुन का माना है तौबा, हित्ततुन का माना है तौबा। तो इनको 2 हुक्म दिए गए कि एक हुक्म तो ये है कि गांव के दरवाजे के पास में अपने आप को, सर को झुका करके जाना, और दूसरा तौबा कह करके जाना। तो चूँकि बनी इसराइल, अभी 1-2 दिन पहले बतलाया था मैंने कि अक्खर दिमाग के थे, एकदम जाहिल जट किस्म के थे, तो इन्होंने जो बात अल्लाह की तरफ से कही गई थी बोलने के लिए उसको बदल दिया। हित्ततुन कहा गया था तो हित्ता कहने के बजाय हिंता कहने लगे। हिंततुन का माना है गेहूँ, हिंततुन का माना है गेहूँ, और हित्ततुन का माना है तौबा। हित्ता यानी तौबा, और हिंता का माना गेहूँ, ये बोल करके गए। और सर झुका करके उनको हुक्म दिया गया था, तो इसके बजाय अपने सूरीनों के बल घसीटते हुए गए, सूरीनों के बल ऐसे घसीटते हुए शहर के अंदर में दाखिल हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया था कि तुम तौबा कहते हुए और अपने आप को झुकाते हुए शहर के अंदर में दाखिल होना। नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खताओं को और तुम्हारे गुनाहों को हम माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो एहसान करने वाले हैं उनको और भी ज़्यादा हम बदला देते हैं। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था बदल दिया, कौलन, उस बात को जो उनको कही गई थी, उनको कहा गया था हित्ता बोलो, तो बदल दिया। गैरल्लज़ी क़ील लहुम, उस कौल के अलावा जो उनको कहा गया था बदल दिया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समा, तो फिर हमने नाजिल किया उन पर, उतारा हमने उन पर जिन लोगों ने जुल्म किया, अज़ाब उतारा, मिनस समा, आसमान पर से, बिमा कानू यफ़सुकून, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी करते थे। तो इस बस्ती के अंदर में जाने के लिए उनको हुक्म दिया गया। इसका अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र फरमाया। और फिर जो उन्होंने अपने दाल और मसूल और प्याज और लहसुन जिसका मुतालबा किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर उसका जिक्र फरमाया। और फिर वादी तीह के अंदर में उन्होंने पानी का मुतालबा किया था कि पानी चाहिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी लाठी एक पत्थर के ऊपर में मारी और वहाँ से पानी का चश्मा फूट गया। तो बनी इसराइल ने कहा कि नहीं, एक चश्मा नहीं, हम 12 खानदान हैं, 12 कबीले हैं, 12 चश्मे चाहिए, हर खानदान के लिए, कबीले के लिए अलग अलग चश्मा चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से 12 जगहों के ऊपर में पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और 12 चश्मे फूटे और 12 खानदान वालों ने अपना अपना चश्मा मुतय्यन कर दिया। इसका तज़किरा आगे वाली आयत के अंदर में अल्लाह ने फरमाया, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया अपने कौम के लिए। फ़क़ुलना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा, इज़रिब बिअसाक अल हजर, अपनी लाठी के ज़रिया से पत्थर पर मारो। फनफजरत मिन्हु
इस्नता आशरत आईना, तो उस लाठी के मारने की वजह से 12 चश्मे फूट पड़े। पहले एक मरतबा लाठी मारी, एक चश्मा फूटा, बनी इसराइल ने मुतालबा किया कि नहीं, हम 12 खानदान हैं तो 12 चश्मे चाहिए। 12 मरतबा लाठी मारी तो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 चश्मे निकाल दिए। कद आलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम, हर खानदान वाले ने अपना घाट पहचान लिया, अपना चश्मा पहचान लिया कि फलाने खानदान का ये चश्मा, फलाने खानदान का ये चश्मा, फलाने खानदान का ये घाट। तो आसमान पर से अल्लाह तबारक व तआला ने मन व सलवा नाजिल किया और ये पत्थर के अंदर में से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का चश्मा निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह ताला की रोज़ी को खाओ और पियो, वला ताअसौ फिल अर्द मुफसिदीन, और ज़मीन के अंदर में मत फैलो फसाद मचाते हुए, ज़मीन के अंदर में फसाद मत फैलाओ। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला ताआमिन वाहिदिन, और याद करो जबकि तुमने कहा ए मूसा लन नस्बिर अला ताआमिन वाहिदिन, एक किस्म के खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने मुतालबा किया कि एक किस्म का खाना, मन सलवा उगता गए, एक किस्म के खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते। फदउ लना रब्बक, तू अपने रब से दुआ मांग। अब देखो, फदउ लना रब्बना नहीं कहते कि हमारे रब से दुआ मांगो, क्या कहते हैं? फदउ लना रब्बक, तेरे रब से हमारे लिए दुआ मांगो। युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, तेरा परवरदिगार हमारे लिए निकाले वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर में उगती है। क्या उगती है? मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व आदसिहा व बसलिहा। बकल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने सब्ज़ी को कहते हैं तरकारियाँ। व किस्सा, ककड़ी, तरकारियाँ ककड़ी, व फूमिहा, गेहूँ, आदस, मसूर की दाल, और बसल, प्याज, ये चाहिए। ये मुतालबा किया अल्लाह तबारक व तआला से। खाना पीना तैयार मिलता था, यानी उनके ज़माने के एतबार से ज़रदार बिरयानी अच्छी नहीं लगी और मांगा मसूर की दाल ने, प्याज ने, लहसुन ने, ककड़ी ने, तरबूज ने, मालूम ने क्या क्या मांगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, ये आसमान पर से जो खाना आता है ये तो बेहतर है, उस बेहतर के बदले के अंदर में अदना और घटिया दर्जे की चीज़ें तुम मांगते हो, मसूर और दाल और प्याज वगैरह, ये तो यहाँ नहीं मिलेगा। वादी सीना के अंदर में ये नहीं मिलेगा, इसके लिए शहर में जाना पड़ेगा। इहबितू मिस्रन, तुम जाओ किसी भी शहर के अंदर में दाखिल हो जाओ। फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, बेशक तुम्हारे लिए वो चीज़ उस शहर के अंदर में होगी जो तुम चाहते हो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, और उन पर मार दी गई रुसवाई, वल मस्कनत, और गरीबी और मोहताजगी। वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, और अल्लाह का गज़ब लेकर के वापस लौटे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि, ये इसलिए हुआ कि ये यहूद और नसारा यानी बनी इसराइल अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे, माजिज़ात का इनकार करते थे, नबियों की बातों का इनकार करते थे, तौरात का और इंजील का इनकार करते थे। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करते थे। बिग़ैरिल हक़्क़ि, ना हक कत्ल करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूद ने कत्ल किया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को यहूद ने कत्ल किया, और भी दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं जिनको यहूद ने कत्ल किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था कि रात के वक्त के अंदर में हज़ारों की यहूदियों की जमात ने जो ईसा अलैहिस्सलाम को के घर को घेर लिया, चूँकि ये अपने दीन को अबदी दीन समझते थे। मूसा अलैहिस्सलाम का दीन अबदी दीन, जैसा हम हमारे दीन को अबदी दीन समझते हैं, क़यामत तक चलने वाला दीन समझते हैं, वो अपने दीन को अबदी दीन समझते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की वजह से वो नाराज़ हो गए
कि हमारा दिन अबदी दिन था और ये कहाँ आ गए और कहाँ उन्होंने नबूवत का दावा किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकान को घेर लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। और एक आदमी, यूहन्ना नाम का एक आदमी था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के अंदर में दाखिल हुआ। अंदर देखा नीचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। ऊपर वाले माले के ऊपर में जा कर के देखा तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। ऊपर से नीचे उतरा, नीचे उतर करके बाहर निकला, बाहर निकल करके ये कहा कि ईसा तो घर में नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है। तो लोगों ने कहा कि तू तो ईसा है, तू ही तो ईसा है। इसलिए कि कुरान पाक कहता है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। यहूद ने न तो ईसा को कत्ल किया, वमा सलबूहु, और न तो सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम। उनका जो आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए घर में दाखिल हुआ था, उसकी शक्ल सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। और जब घर से बाहर निकला तो लोगों ने ये समझा कि ये ईसा है। वो कहने लगा कि मैं ईसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फलाना आदमी हूँ, मेरा नाम ये है। तो कि नहीं, तू ईसा है। इसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसको सूली के ऊपर में चढ़ा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी की, व कानू यअतदून, और अल्लाह ताला के हुक्म की हुक्म हुदूदी करते थे और तजावुज़ करते थे। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के वो वाक़यात और यहूद और नसारा के वो वाक़यात जो मुल्क मिस्र से लेकर के वादी सीना के अंदर में जो पेश आए, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ज़िक्र किया। और पहले, इससे पहले वाले रुकू के अंदर में बनी इसराइल का तज़किरा इजमाली तौर पर फरमाया, और ये छठे रुकू के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ में इसका ज़िक्र फरमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।